Good morning, dear friends. Once again, I am here with the 12th class video, and this lesson is very important from the point of view of the board examination. So, to keep in mind the board students outgoing classes of 12th DEM, DEF, I have tried to make this video which is very concise and maybe attractive also. So, new economic policy 1991, that is liberalization, privatization and globalization. So popularly it is known as LPG policy. Before showing this all different points, we will just like to know that some flashback about this economic policy. It was a big bang reforms, you can say, in 1991. 24th July 1991 was a historic day in India's इकोनॉमिक्स, इंडियाज़ इकोनॉमी। ओके, इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी घटना थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्चुअली रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड दे आर डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनका पर्पस क्या था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एक गति प्रदान करना, टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, in 1991 the government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy आपकी स्क्रीन पर लोगों 1991 दिया, आप सब लोग याद रखेंगे। So in 1991 the government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of 1990s। अब वो क्राइसिस क्या था? वो क्राइसिस हर क्षेत्र में क्राइसिस था। इकोनॉमी के जो भी सेक्टर्स थे, सारे सेक्टर्स की हालत ख़राब थी, और जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स के जो इंडिकेशंस मिल रहे थे, दे वर दोज पैरामीटर्स वर नॉट साउंड and actually they are very worst performance on foreign exchange and balance of payment, fiscal deficit, etc, etc. Okay, so these reforms came to be known as new economic policy, NEP. Okay, three broad components of new economic policies were the policy of liberalization, L, in place of licensing, L. तो यहाँ L replaced L. तो what replaced what? L replaced L. Means liberalization replaced licensing. So earlier licensing was there, licensing for industries and trade, and that was replaced and that was liberalized. Okay, the second point is the policy of privatization, P, in place of quotas. कोटा को replace किया गया। पहले हर चीज़ के लिए कोटा था, quota for industrialists were allotted, so the quota was replaced and in place of that quota system privatization was introduced, and the policy of globalization, G, in place of P for exports and imports. ओके, सो ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम परमिट ना लेना पड़े, आप फ्री होकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करें। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द पॉलिसी दिस LPG वाज सेट टू रिप्लेस LQP। L स्टैंड फॉर लाइसेंसिंग, Q स्टैंड फॉर कोटा एंड P स्टैंड फॉर परमिट्स। तो परमिट को हटाने के लिए, कोटा को ख़त्म करने के लिए और लाइसेंसिंग को एवोलिश करने के लिए there was a need of a policy and that was LPG policy। तो ये आपके दिमाग में तो इतना बैठ गया। अब हम देखना चाहेंगे कि उसके पीछे रीजन का क्या क्या रहे होंगे, रीजन्स बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो रीजन्स बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ जब हम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, सो अननेसेसरली इंट्रोडक्शन इज नेवर इट हैपेंड and there is some sound reasons are there, and just few seconds back I was just discussing those reasons and these reasons exactly flashed on your screen। so physical deficit, अब physical deficit का फार्मूला अगर आप देखो तो बजट वाले लेसन में आपने पढ़ा होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके, so physical deficit is a one of the major indicator parameter to know the health of a economy। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को जानने के लिए हम फिजिकल डेफिसिट एक पैरामीटर की तरह यूज़ करते हैं। हम किसी भी देश के फिजिकल डेफिसिट को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश की आर्थिक हालत क्या है, क्योंकि जो नुकसान इकोनॉमी को हो रहा है, जो घाटे हो रहे हैं, उस घाटे को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उस घाटे को हम लोग पूरा करने के लिए हम बोरोइंग करते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट बिकम्स इक्वल टू द बोरोइंग। सो फिजिकल डेफिसिट देख लीजिए क्या हालत है। द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर वॉज मच मोर देन इट्स इनकम। मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो गई कि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपने देखा फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं। हियर इट इज मेंशन दैट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर वाज मच मोर देन इट्स इनकम, सो द गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू बोरो मनी
फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट को कंपेल होना पड़ा, फोर्स होकर गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा, क्योंकि आपको अपने देश की इंडस्ट्रीज को चलाना है, खर्चे को चलाना है, नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप विदेशों से मंगा कर करते हैं वो सब आपको पूरा करना है। सो हाउ विल डू इफ़ यू डोंट हैव मनी, ठीक है। तो दैट फॉर दैट यू हैव टू गो टू अदर कंट्रीज, सो अदर इंटरनेशनल बॉडीज। पब्लिक डेब्ट बिकेम वेरी हाई, क्योंकि आपने कंपेंसेट करने के लिए बोरो करना शुरू किया, और बोरो करने से क्या हो गया कि डेब्ट जो है बहुत हाई हो गया, उधारी बहुत बढ़ गई। अ ह्यूज अमाउंट हैड टू बी पेड एज ए इंटरेस्ट एवरीवेयर, और जो आपने उधार लिया, बोरो किया, उस पर इंटरेस्ट दूसरे देश के जो गवर्नमेंट है वो चार्ज करेंगी, या वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करेंगी, तो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब 100 रुपये आपने उधार लिया और उसमें से मान लो 50 रुपये आपका केवल उसका उधार को वापस करने के लिए ही चला जाए, तो आप केवल 50 रुपये का यूज़ कर पाओगे ना। तो दैट वॉज द ग्रेट अनकम्फर्ट जोन फॉर इकोनॉमिस्ट। So unfavorable balance of payment. Balance of payment, you know that the balance of payment is a accounting concepts. It records the transactions between the one country and rest of the world. और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में होता है तो डेबिट और क्रेडिट इसमें मेंशन किया जाता है। जो हम इनफ्लो होता है वो क्रेडिट साइड में जाता है, और जो आउटफ्लो होता है वो डेबिट साइड में जाता है। मतलब करने का मतलब, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो पैसा अंदर आएगा तो वो क्रेडिट साइड में होगा, इंपोर्ट करते हो तो पैसा बाहर जाएगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा। ये अकाउंटिंग तरीके से लिखा जाता है। तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट बिकेम मच मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो निश्चित रूप से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारा आउटफ्लो ज़्यादा होगा और हमारा डेबिट आइटम ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब कंट्री की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिकेम वेरी लो, सर्टनली अगर ऐसी स्थिति होगी, आप ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, बाहर जाएगा। द कंट्री वॉज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू मीट द इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर, और कुछ चीज़ें जो है आपको इम्पोर्ट करना ही करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, मशीनरी गुड्स आपको परचेज करना ही करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस थी। नेक्स्ट हमारा है गल्फ क्राइसिस। इसी समय गल्फ कंट्रीज जो है वहाँ पर क्राइसिस हो गई। तो लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर वर्किंग इन द गल्फ कंट्रीज, और वहाँ पर बहुत सारे भारतीय काम करते थे, और वहाँ पर काम करने वाले, वहाँ जब क्राइसिस हो गई तो वहाँ से उनको भागना पड़ा। वहाँ से हमको रेमिटेंसेज वगैरह मिलते थे, जिससे अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता था। तो दैट वाज द ग्रेट एक कॉज ऑफ कंसर्न बन गया उस समय। तो लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज, द इराक वॉर अफेक्टेड देम बैडली, मेनी ऑफ देम रिटर्न टू इंडिया, सो द अर्निंग्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज डिक्लाइंड शार्पली। अभी जैसे देखो आप कोविड-19 के दौर में देखो दिल्ली से बहुत सारे माइग्रेंट्स जा रहे हैं, हाँ। हालांकि किसान आंदोलन पर तो बहुत सारा सपोर्ट मिला, लेकिन दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों को वो सपोर्ट नहीं मिला। अगर उनकी भी व्यवस्था यहाँ होती तो उनको भी नहीं जाना पड़ता। तो ये स्थिति थी, जिससे गल्फ क्राइसिस में, अगर वहाँ गल्फ में लड़ाई हुई, इराक ईरान जो वॉर हुआ, तो उसकी वजह से बहुत सारे वहाँ पर जो भारतीय थे उनको भागना पड़ा, जैसे कोविड-19 में मजदूरों को भागना पड़ा यहाँ से। तो ये स्थिति थी वहाँ पर, और इकोनॉमिक की स्थिति, वहाँ से जो रेमिटेंसेज आते थे तो वो रेमिटेंस से आना बंद हो गए, क्योंकि वो मजदूरी वहाँ नहीं रहे, काम करने वाले कामगार ही वहाँ नहीं रहे। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस राइज, कंटिन्यूस प्राइस राइज इंडिकेट्स है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो प्राइसेज ऑफ एसेंशियल गुड्स इंक्रीज शार्पली, दिस अफेक्टेड द पुअर एंड सैलरीड पीपल। इन्फ्लेशन हमेशा से जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप होता है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो सैलरीड क्लास की इनकम फिक्स होती है, तो और पुअर के पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम होता ही नहीं है बेचारे के पास। तो दिस अफेक्टेड द पुअर एंड सैलरीड पीपल वेरी बैडली, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल केम डाउन। निश्चित रूप से अगर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होंगे ही। आप जो पहले आसानी से खरीद लेते थे अब नहीं खरीद पाएंगे, आपके रिस्क से बाहर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसका असर तो पड़ना ही पड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। इस बीच वाइट एलिफेंट की तरह ये काम हो गया था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, क्योंकि ओवर स्टाफिंग की समस्या हो गई वहाँ पर, प्रोडक्टिविटी कम हो गया, और वर्ल्ड के साथ जो स्पीड होनी चाहिए थी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, क्वालिटी, वो सब मैच नहीं हो पा रही थी। The poor performance of the public sector industries. Many of the PSUs, public sector undertakings, became sick units. घाटे में जाने लगी। Inefficiency and corruption resulted in the downfall of the PSUs. और राजनीतिक जो नेक्सस था, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस का नेक्सस, उस नेक्सस की वजह से ये
PSU की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। थैंक्स टू द डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटलाइजेशन की इसकी वजह से बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आई है, जो हम फील करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आई है। और दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, आई एम नॉट सेइंग दैट ओके दिस इज वेरी गुड, बट yes it is the steps are taken by the government in the right direction, and that is a happy situation, win-win situation. Role of IMF and World Bank. India got loan of $7 billion from IMF and World Bank. भारत को लोन मिला भाई. They instructed India to introduce economic reforms. और भारत की हालत ख़राब थी, इसके बाद भी अगर वर्ल्ड बैंक और IMF ने लोन दिया तो लोन देने वाला ये चाहेगा कि आप अपने लोन को इंस्ट्रक्शन भी देगा ना कि कैसे लोन को मैनेज करें, क्योंकि उसको भी तो डर है कि उसका पैसा डूब जाएगा. तो यही इसी बात को यहाँ रखा गया कि इंडिया गॉट अ लोन ऑफ $7 billion फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक. दे इंस्ट्रक्टेड इंडिया टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भारत का था, इट वॉज नॉट आउट ऑफ चॉइस बट आउट ऑफ कंपल्सन्स, एंड द कंपल्सन्स वर, these are the compulsions: poor performance of the public sector industries, inflation, Gulf crisis, unfavorable balance of payment, फिजिकल डेफिसिट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंड विल जस्ट सी द फ्लो चार्ट, माइंड मैप. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ माइंड मैप ऑफ ईच एंड एवरी लेसन डियर फ्रेंड्स, क्योंकि माइंड मैप जब होता है तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं. आपको पूरे करिकुलम, आपका जो पूरा लेसन होता है वो आपके दिमाग में सामने होता है. तो आपसे कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे तो आप तो थोड़ा सा मैनेज करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, थोड़ा नहीं बहुत आसानी हो जाती है. तो हम माइंड मैप का सहारा लेंगे इसके लिए. तो 1919 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अगर समझना है तो दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया सकता है. पहला तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, और ऐसे एक दूसरा है स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स. तो इन दो को क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्टेबलाइजेशन मेजर्स. तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में अगर इकोनॉमी में अगर वो उस तरीके के सोर्स नहीं है, उस तरीके के सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो उस सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना. अब जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में हमारा जैसे मान लें हमने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है. दीज आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. इन्होंने इकोनॉमी की संरचना को ही बदल डाला. बहुत सारी कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनी थी, बहुत सारे क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं था. दे आर रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर. तो इस तरीके के जो परिवर्तन थे, इन परिवर्तनों को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मतलब एक स्ट्रक्चरल चीज, आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास किया गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में. दूसरा है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जिससे हम इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सकें. ठीक है, तो ये दो तरह के रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे. और फिर इसके बाद आते हैं हम, सबसे बड़ी बात है जो लिबरलाइजेशन है. प्राइवेटाइजेशन को तो जो लॉस मेकिंग कंपनी से उनको प्राइवेट हैंड्स में देना, फिर इसकी प्राइवेटाइजेशन के लिए डिसइन्वेस्टमेंट एक टूल के रूप में यूज़ किया गया. अब हम आते हैं लिबरलाइजेशन के ऊपर. तो लिबरलाइजेशन मतलब पॉलिसी को लिबरल बनाना, आसान बनाना, ईज़ ऑफ बिजनेस जिसको कह सकते हैं हम. तो उसके तहत हमने क्या किया, डी रेगुलेशन फाइनेंशियल सेक्टर में किया, लिबरलाइजेशन किया, मतलब रिफॉर्म्स किए. टैक्स रिफॉर्म्स हमने किए, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में रिफॉर्म किया, और ट्रेड पॉलिसी में हमने रिफॉर्म किया. ओके, सो डी रेगुलेशंस, डी रिजर्वेशंस ऑफ प्रोडक्शन एरियाज जिसको कह लो, कि जो एरियाज पहले रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व फॉर forces of the market were allowed to determine allocation of resources rather than directive policy of the government. So इस तरीके के हम कामों को हमने इसमें किया था. ओके, इसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर का अगर रिफॉर्म देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो ये हमारे मेजर रिफॉर्म्स थे. इसमें हम फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स में हम देखेंगे कि आरबीआई जो है, आरबीआई के जो रेगुलेशन था और कंट्रोल था, उसमें बहुत सारे को उसको आसान बनाया गया, ईज़ी बनाया गया, और आरबीआई को डायरेक्टिव दिया गया कि आप फैसिलिटेटर की भूमिका ज़्यादा निभाएं. ओके, इसी तरह टैक्स रिफॉर्म्स है. टैक्स रिफॉर्म में आपने सुना होगा, चलिया कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, और चलिया कमेटी की रिपोर्ट का जो मेन मकसद था कि टैक्स को इस तरीके से बनाया जाए जिससे गवर्नमेंट को आसानी हो टैक्स कलेक्शन करने में, और टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं पड़े. तो इसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए गए थे वो बेसिकली इस टैक्स रिफॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं. ओके,
इसी तरह एक्सटर्नल सेक्टर के रिफॉर्म्स को अगर देखा जाए फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में, उसको भी 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ की बात की गई थी। और इसमें डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ में हम ये इसका मतलब ये होता है कि लोअरिंग द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह जैसे मान लो कि एक US डॉलर और ब्रिटिश पाउंड की अगर बात करें, कैन उनको एक्सचेंज करें तो मोर रुपीज़ देन बिफोर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम US डॉलर और ब्रिटिश पाउंड को अगर हम एक्सचेंज करें तो हमको ज़्यादा रुपीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय रुपये का डिवैल्यूएशन किया गया। अपनी करेंसीज की वैल्यू को हम फॉरेन करेंसीज के सामने कम कर रहे हैं। मतलब पहले $1 = 60 था, तो अब $1 = 75 हो गया मान लीजिए ऐसे, तो अब हमको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट US डॉलर और ब्रिटिश पाउंड कैन बाई मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। तो मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले $1 में 60 रुपीज़ मिलते थे, तो हम 60 रुपीज़ का सामान परचेज करते थे। नाउ वी आर अमेरिकन आर एबल टू परचेज $1 में 75 रुपीज़, तो 75 मोर गुड्स दे कैन परचेज। तो सर्टनली अगर ज़्यादा सामान आप परचेज कर पा रहे हो तो आप ज़्यादा सब इम्पोर्ट करोगे ना, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपके इनफ्लो ऑफ करेंसी होगी, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार हो जाएगा। ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द इंडियन इकोनॉमी, और इससे फॉरेन करेंसी भी भारत में आएगी। तो इस तरीके के जो रिफॉर्म्स थे वो हमारे इसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे। इस तरह फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी में रिफॉर्म्स था, जिसमें टैरिफ के रिस्ट्रिक्शंस उसको मॉडरेट किया गया था, और सॉरी, इसी तरह मार्केट कॉम्पिटिशन को रिप्लेस करके कोटाज एंड टैरिफ के पॉलिसी के क्षेत्र में सुधार किया गया था। इसी प्रकार और भी जो इफ़िशियंसी थे ग्रोथ और ग्रोथ के लिए, उसमें भी हमने सुधार किया था। तो अगर इसके मतलब इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें कि ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म किया गया था, तो उसको हम कह सकते हैं कि इम्पोर्ट कोटाज हैव बीन एबोलिश्ड। इम्पोर्ट का जो कोटा था उसको हटा दिया गया था। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, ओके, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग जो थी हैज़ बीन एबोलिश्ड। ठीक है, इसके साथ ही मॉडर्नाइजेशन रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी टू इन्हांस द कॉम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज़ बीन विदड्रॉन टू इन्हांस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स इन द international market. And briefly, trade policy after liberalization is to facilitate integration of the Indian market with the global market, with a view to achieving growth through competition rather than protection. ओके, मतलब बिल्कुल खुली चुनौती को स्वीकार करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो ये हमारा था। अब इसको थोड़ा सा हम रिवीजन के टर्म में देख लो, तो NEP ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से लिखा गया है। द NEP कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दे आर शॉर्ट टर्म मेजर्स टू इंक्रीज। ये कैसा मेजर्स होता है स्टेबलाइजेशन मेजर्स? ये शॉर्ट टर्म 1 मार्क क्वेश्चन। टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इनका मोटो क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, ठीक है, टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन से असर्शन एंड रीजनिंग में भी आ जाएंगे, इसलिए आप स्टेबलाइजेशन मेजर्स को ध्यान रखेंगे। दे आर शॉर्ट टर्म, पहला पॉइंट शॉर्ट टर्म, टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, थर्ड पॉइंट कंट्रोल इन्फ्लेशन। ओके, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या आएगा? दे आर लॉन्ग टर्म मेजर्स, पहला शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। ओके, सो इसके बाद हम लिबरलाइजेशन पर हम बात करते हैं और इसके डिफिनीशंस को हम देखेंगे, लेकिन हम इसको देखेंगे अगले वीडियो। इसको हम यहाँ तक इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपको कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू विदड्रॉइंग ऑल द कंट्रोल एंड restrictions imposed on the economy by the government. Once again repeat, liberalization refers to withdrawing, हटा देना, समाप्त कर देना, ऑल कंट्रोल, जितने भी नियंत्रण थे उसको हटा देना, एंड रेस्ट्रिक्शंस, और रुकावटें थी, इम्पोज्ड ऑन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में जो रुकावटें थी गवर्नमेंट के द्वारा वो सबको हटा देना। लिबरलाइजेशन सेज लाइक दैट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तब तक के लिए आई होप यू लाइक दिस। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।